योगः कर्मसु कौशलम्। I am working as assistant professor in Srimati M.N.K. Dalal Education. I am working as assistant professor in Srimati M.N.K. Dalal Education College for Women, Ahmedabad. First of all, मैं HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। उसकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। Give me an opportunity to share my views on the subject critical thinking. Friends, let us start with the glimpse or the pathway of today's lecture. In the beginning, we discuss about the introduction part of the critical thinking. In this part, we will try to explore the historical background of the critical thinking. Second part is what is critical thinking. To understand what is critical thinking, we explore the meaning, definitions, characteristics, and comparison between normal thinkers and critical thinker. After that, we will try to understand why critical thinking is so important, how critical thinking incorporated in 21st century skill, and why it is a need of the day. After that, we will discuss about how critical thinking can be taught to our student. Is it teachable? If yes, then what is the right time to teach to our student, and how? What are the some techniques? So we will discuss all these things during this lecture. Friends, we have to discuss what is thinking before we discuss critical thinking. अगर हम छोटे बच्चों को पूछेंगे विचार क्या है, तो वह क्या बताएंगे? उसने जो देखा है, उसके आसपास जो है, वही उनके लिए विचार है. That means if we are going to ask kids what is a thought, then they will give answer like my toys, television, bike, scooter, what they actually see in their surroundings. अगर हम युवाओं को पूछेंगे विचार क्या है, then they will answer like that. What should be I? मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीजें विचार है. If we ask to the adults what is thought, what is thinking, then they must say thinking is an abstract process. Thinking is a mental process. So friends, we consider that thinking is an mental and abstract process. Apart from that, there are many types of thinking, like perceptual thinking, conceptual thinking, reflective thinking, creative thinking, critical thinking, and non-directive or associative thinking. These are the some types of the thinking. Perceptual thinking is a very basic thinking. जो हमें दिखता है, जो हमारे आसपास है, उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं
तो वो परसेप्चुअल थिंकिंग होता है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग उससे ऊपर है, जो हमारे समक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, उसके बारे में भी हम सोच विचार करते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में हम जो अनुभव प्राप्त होते हैं उस अनुभव के आधार पे विचार करते हैं, उस अनुभव के आधार पे कुछ नया प्राप्त करते हैं, तब वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है। क्रिएटिव थिंकिंग वो है जिसमें हम कई नए विचार प्रस्तुत करते हैं, कोई नई चीज को खोजते हैं, कोई नया तरीका ढूंढते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो कि जजमेंट के लिए है या निर्णय लेने के लिए है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो। और फिर है नॉन डायरेक्टिव। यहाँ पे कोई दिशा नहीं होती है, पर उसका अर्थ ये भी नहीं है कि मन में जो भी विचार आए, जैसे भी विचार आए, वो हम करते गए। तो there are certain type of thinking. From that we are going to discuss critical thinking. अब अगर हम उसकी हिस्ट्री देखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में जो षट दर्शन बताए गए हैं, जो कि वैशेषिक, सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये जो षट दर्शन दिखाए गए हैं उसमें से वैशेषिक में हम आलोचनात्मक चिंतन के बीज देख सकते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता मुनि प्रणाद को माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले तार्किक विचार के आधार पर सृष्टि का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। तब से क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत हम कह सकते हैं। उसी तरह ग्रीक फिलोसॉफी में भी हम देख सकते हैं सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल are the thinkers who used critical thinking. सुकरात के प्रश्न पद्धति, प्लेटो की डायलॉग मेथड, ये सारी बातें क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पे की हुई है। एरिस्टोटल ने वनस्पति का उसके लक्षणों के, उसकी विशेषताओं के आधार पे वर्गीकरण किया था, जो बाद में साइंटिफिक क्लासिफिकेशन फॉर द प्लांट के लिए भी यूजफुल रहा। तो वहां पे भी हम देख सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत वहां से हुई होगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आलोचनात्मक चिंतन क्या है, व्हाट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग, और उसकी शुरुआत हम क्रिटिकल थिंकिंग के एटोमोलॉजिकल मीनिंग को देख के करेंगे। Etymological meaning means how the word is emerged. Origin of the word is known as etymological meaning. तो हम देखते हैं कि critical thinking is a combination of two words, critical and thinking. Thinking का हमने थोड़ा बहुत आगे डिस्कस कर लिया है।
But what about the critical? And from where the critical word is emerged? अगर हम उसकी हिस्ट्री को टटोले तो हमें ज्ञात होता है कि क्रिटिकल शब्द ओल्ड ग्रीक शब्द क्रिटिकोस पर से बना है। अब क्रिटिकोस का अर्थ क्या होता है? लेट्स सी। क्रिटिकोस का अर्थ होता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड मीन्स ऑफ जजिंग, ऑफ जजमेंट, फॉर जजिंग एंड बीइंग एबल टू डिसर्न। यानी हम क्रिटिकल का शब्द, आलोचना शब्द का अर्थ देखें जो एंशियंट ग्रीक भाषा में क्रिटिकोस शब्द से बना है, तो उसका अर्थ होता है ये फॉर जजमेंट, ऑफ जजमेंट, यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, बौद्धिक क्षमता है। तो शब्द के आधार पर, शब्द के उद्भव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन एक बौद्धिक क्षमता है। ऐसी बौद्धिक क्षमता है जिससे व्यक्ति निर्णय कर सकते हैं, निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो उससे आगे हम क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशंस देखेंगे। हम सब जानते हैं कि जब हम कोई अमूर्त विचार के बारे में बात करते हैं तब उसको स्पष्ट करने के लिए कई लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और सभी लोग अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। सेम वे फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो we have different many definitions, because critical thinking is an abstract thought. So people try to explore the meaning and try to explore the elements of critical thinking, try to explore the process of critical thinking, and then they try to define what is the critical thinking. So that we have many definitions of critical thinking. I put some definitions in my presentation which will help us to understanding the concept of critical thinking. Disciplined thinking that is clear, rational, open-minded and informed by evidence. I think this one is shortest definition. What is critical thinking? By seeing this definition, we can say that critical thinking is a thinking process which follows some disciplines. What type of disciplines? It is rational, it is open-minded and informed by evidence. So it is clear also. ये ऐसी विचार प्रक्रिया है जो स्पष्ट है, तर्क पर आधारित है, मुक्त विचार वाली है और प्रमाणों के आधार पे की गई हुई है। तो इस परिभाषा से
हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में इतना कह सकते हैं। Let us see the second definition of the critical thinking. The process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and evaluating information to reach an answer of conclusion. This definition uses many conceptual words like conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, evaluating. ये सारी क्षमताएं उसका कौशल्य युक्त उपयोग करके जब हम किसी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं, तब हमारे द्वारा जो वैचारिक प्रक्रिया की गई है वह आलोचनात्मक चिंतन है। By seeing this definition, we can say that critical thinking includes sub-skills like conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and evaluating information. So, critical thinking is a complex concept. It is a bunch of sub-skills. If we want to be a critical thinker, we have to develop certain skills which help us to be a critical thinker. आइए एक और व्याख्या, एक और परिभाषा भी देखते हैं। Purposeful, self-regulatory judgment which result in interpretation, analysis, evaluation, and inference, as well as explanation of the evidential, conceptual, methodological, criteriological, or contextual consideration upon which that judgment is based. This definition is very complex in nature, but it suggests many important things about the critical thinking. भले ही ये थोड़ी संकुल प्रकार की परिभाषा है, पर आलोचनात्मक विचार के बारे में हमें अच्छी जानकारी देती है। आलोचनात्मक विचार हेतुपूर्ण है, स्वयं नियंत्रित है, इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें एनालिसिस पृथक्करण होता है, मूल्यांकन होता है, इन्फरेंस, एक्सप्लेनेशन, और ये सारी चीजें एविडेंशियल होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है, मेथोडोलॉजिकल, क्राइटेरियोलॉजिकल और कॉन्टेक्सचुअल होती है, जिसके आधार पे हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यानी कि आलोचनात्मक चिंतन किसी समस्या के समाधान पर पहुंचने की क्रिया है, जिसमें हम कई नई संकल्पनाओं का विचार करते हैं, संकल्पनाओं के आधार पे, एविडेंस के आधार पे पृथक्करण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और
किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परिभाषाओं के आधार पे आलोचनात्मक चिंतन के क्या विशेषताएं निकलती है। सो लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स of the critical thinking. Critical thinking allows a person to analyze information and make an objective judgment. In critical thinking, we or the person who think critically will get the objective judgment by analyzing the information. So this process is allowing the person to analyze the information and through that make an objective judgment. It is ability to objectively analyze information and draw a rational conclusion. This also said the same thing. By thinking critically, person will get rational conclusion. यानी कि व्यक्ति एक तर्कबद्ध परिणाम तक पहुंचता है और उसके लिए उसे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ता है। और एनालाइज भी कैसे करना है? ऑब्जेक्टिवली, यानी कि पूर्वग्रह से मुक्त होके जब हम माहिती का पृथक्करण करेंगे, निसंदेह हम एक तर्कबद्ध परिणाम तक पहुंचेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए हम ये कर सकते हैं। आगे है, इट इज ऑल अबाउट स्टेपिंग असाइड फ्रॉम पर्सनल बिलीफ्स, प्रिजम्पशंस, prejudice and opinions to sort out your thoughts, discover truths and solve problems. Critical thinking विचारों के निर्माण के लिए, समस्या के समाधान के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए उपयोगी है। और जब हम आलोचनात्मक विचार करते हैं तब हम अपनी निजी मान्यताओं से मुक्त होते हैं, कोई भी पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। इस प्रकार हम क्रिटिकल थिंकिंग में जुड़ते हैं। इट इज वेल डिसिप्लिन्ड थॉट प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग की एक विशेषता यह है कि वो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जहां पे विज्ञान होता है वहां पे निसंदेह एक प्रकार की डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन यानी कि कोई एक निश्चित स्वरूप, कोई एक निश्चित प्रोसेस, प्रक्रिया, जिसको पूर्ण करके हम कुछ पा सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो फॉलो सम स्टेप्स। In this manner, it is a disciplined thought process. जैसे कि सबसे पहले समस्या या अनुभव क्या है वो जानना, उसके पीछे की वजह क्या है वो जानना,
जानने के लिए उत्सुक होना, जो भी हमने जाना है उस पर विचार करना और अंत में सत्य को प्राप्त करना, ये सारे स्टेप्स क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं और इस स्टेप्स को फॉलो करके हम क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। इस प्रकार हम इसको एक डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फैक्ट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म जजमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग को हम एक ऐसी प्रक्रिया बताते हैं जिसमें हम तथ्यों का पृथक्करण करते हैं और उसके जरिए हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो ये निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया है और निर्णय पर पहुंचने के लिए हम तथ्यों को एनालाइज करते हैं। इट्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। कई बार ये कहा गया है, क्रिटिकल थिंकिंग इज अ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। हम क्या विचार करते हैं, क्यों विचार करते हैं, उस विचार का परिणाम क्या है, ये सारी चीजें हम क्रिटिकल थिंकिंग करते समय सोचते हैं और इसीलिए कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग इज अ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इट रिक्वायर हायर कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स। हमने जब क्रिटिकल थिंकिंग की परिभाषाएं देखी उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे जैसे एनालाइजिंग, इन्फरेंस या फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन, अप्लाइंग। ये सारी चीजें हायर कॉग्निटिव थिंग्स को दर्शाती है। If we want to be a critical thinker, then we must have higher order thinking skills like analyzing, applying, evaluating. आगे हम देखेंगे यही सारी चीजें। It involves the use of cognitive skills like conceptualization, interpretation, analysis, synthesis, and evaluation for arriving at a valid, unbiased judgment. In critical thinking process, if we want unbiased, valid judgment, then we must have to use our skill like conceptualizations, interpretation, analysis, synthesis, and evaluation. And these all are higher cognitive thinking skills. Let us see one diagram to know the higher order cognitive thinking skills. In 1956, Benjamin Bloom has given the taxonomy of the cognitive domain. He gave 6 levels of our cognitive behavior. To introduce these 6 levels, he used nouns like knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. But in 2001, Anderson and Krathwohl suggest some changes in the classification of the cognitive domain given by Bloom. They use verbs instead of noun, and they changed the order
of last two levels and gave new name to the last level. They use verb like remember, understand, apply, analyze, evaluate and create. From the applying to create level, person has to use higher cognitive thinking skills. And what we discuss about the critical thinking, we used many times applying, analyzing, evaluating words. तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन में उच्च कोटि की चिंतनात्मक क्षमताएं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे नॉर्मल थिंकिंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। नॉर्मल थिंकर की विशेषताएं क्या होती है और उसके साथ ही हम देखेंगे क्रिटिकल थिंकर की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहला है नॉर्मल थिंकर हैज अ टेंडेंसी टू थिंक unclearly and inaccurately, while critical thinker has tendency to think clearly and accurately. जो नॉर्मल थिंकर है वो अपने विचार स्पष्ट नहीं कर सकता, वो स्पष्ट रूप से विचार नहीं करता, वो अपने विचार को एक्यूरेट बनाने की कोशिश नहीं करता। जैसे जैसे विचार आते गए, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया। जबकि जो क्रिटिकल थिंकर है वो अपने विचार स्पष्ट रूप से करता है, वो अपने विचार को सही बनाने का प्रयास करता है, सही विचार तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकर की टेंडेंसी होती है कि वह एक्यूरेटली एंड क्लियरली थिंकिंग करता है। दूसरा है बायस थॉट प्रोसेस। जबकि क्रिटिकल थिंकर है वो अनबायस, उसकी थॉट प्रोसेस अनबायस्ड होती है। जो नॉर्मल थिंकर है वो अपने विचार पे अपने पूर्वग्रह को हावी होने देता है, वो अपना निजी मंतव्य अपने विचार में जोड़ता है। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला व्यक्ति अपने निजी विचारों को, अपने निजी मंतव्यों को, अपने पूर्वग्रहों को अपनी विचार प्रक्रिया में शामिल होने देता नहीं है। According to them, critical thinking is not important. जो नॉर्मल थिंकर है वो ऐसा समझते हैं कि आलोचनात्मक विचार किसी काम का नहीं है, आवश्यक नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वाइल क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला व्यक्ति जानता है कि आलोचनात्मक विचार कितना महत्वपूर्ण है। They know the right value of the critical thinking. So they believed in critical thinking and they try to think critically. They hide their weakness. If we talk about normal thinker, then we can say that they hide their weaknesses. They don't want that people know how they are weak. But in case of critical thinker, they know their weaknesses, they accept their weaknesses, and they try to overcome their weaknesses. Normal thinkers
are not good listeners. They do not listen others. But critical thinkers are good listeners. They always listen others. They respect others' point of views. They respect others' argues. While in case of normal thinker, they don't want to listen anybody. They refuses other comments and argues. But critical thinkers, they accept others' comments and argues if found rational. अगर क्रिटिकल थिंकर को अपने सामने वाले की कोई कमेंट्स या दलील में वजूद दिखता है तो वह उसका स्वीकार करता है, जबकि सामान्य विचार करने वाला व्यक्ति दूसरे का विचार स्वीकार नहीं करता। जो नॉर्मल थिंकर होता है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए धारणाएं रचता है या फिर कोई अभिप्राय रखता है, जबकि क्रिटिकल थिंकर है वो अपने निजी स्वार्थ के अपने निजी स्वार्थ की जगह वह एविडेंस और फैक्ट्स के आधार पे अपनी अवधारणाएं रखता है, अपना अभिप्राय रखता है। जो सामान्य विचार करने वाला है वह अपने मान्यताओं के बारे में जागृत नहीं होता, जबकि जो आलोचनात्मक विचार करने वाला है वह अपनी मान्यताओं पर विचार करता है, वह अपनी मान्यताओं को भली भांति जानता है। दे आर अवेयर अबाउट देयर बिलीव्स। वो अपनी मान्यताओं के बारे में जानता है, जागृत है, इसीलिए वो उसको अपने विचार पर हावी नहीं होने देता। जो नॉर्मल थिंकर है, इट हैज नो हायर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी। जबकि हमने आगे भी देखा, इफ वी वांट टू थिंक क्रिटिकली वी मस्ट हैव हायर कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स। तो जो क्रिटिकल थिंकर है उसके पास हायर कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स होती है। जो नॉर्मल थिंकिंग करने वाला है उसके लिए हम कह सकते हैं लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। उसको किसी चीज में जिज्ञासा ही नहीं है, नई बातें जानना चाहता ही नहीं है, किसी बात पे वो विचार करना ही नहीं चाहता। जबकि जो क्रिटिकल थिंकर है वो जिज्ञासा से भरपूर है, वो जिज्ञासु है। he or she so curious to know new things, to think on thinking। और लास्ट में एक डिफरेंस हम ये कह सकते हैं, नो इंटरेस्टेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट इंटरेस्टेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो सामान्य चिंतन करने वाला है वो समस्या के समाधान में रुचि नहीं रखता, जबकि क्रिटिकल थिंकर है वो ऑलवेज स्ट्राइव टू सॉल्व प्रॉब्लम। जहां कहीं भी उसे समस्या दिखी वो उसके समाधान के लिए विचार करना शुरू कर देता है। तो यह सामान्य विचारशील व्यक्ति और आलोचनात्मक विचारशील व्यक्ति के गुणों की कंपैरिजन हमने की।
उससे हम ये जान सकते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन में क्या क्या समाविष्ट है, उसके घटक क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कोर कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस to solve problem by analyzing facts and evidence. It is a rational process, scientific process. इस प्रकार हम क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। Now we move on. Why we are discussing about critical thinking? For that, skill of 21st century is the base to think about. Friends, society is changing with time. Our today's world is not the same world which was in 2011. अगर हम पिछले दशक की बात करें तो भी आज का जो विश्व है वो 2011 का विश्व नहीं है। बहुत सारी चीजें उसमें बदलाव आया है। तो समय के साथ साथ समाज अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। ऐसे माहौल में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो नवयुवा है, जो हमारे छात्र है, they have to face many problems, and if they want to survive, they want to succeed in this situation, they have to know how the problems tackle. For that, they need to think critically, because critical thinking is the process of solving the problem. So friends, in this scenario, when the society is growing and changing rapidly with the time, educationists, government policymakers, business leaders, academicians comprise some skills. They list out some skills and abilities which will help to survive in 21st century. अगर हमें 21st सेंचुरी में इस माहौल में रहना है, सफलता के साथ रहना है, तो कुछ चीजें, कुछ कौशल्य, कुछ क्षमताएं हमें प्राप्त करनी होगी, जो चिंतनशील बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने डिराइव करके दी है। वैसे तो बहुत सारी चीजें बताई गई है, पर सबसे ध्यानाकर्षक जो बात है वो है 4 C's। 4 C's क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। They said that if you want to survive and succeed in 21st century, you must have these 4 C's, skills of this 4 C, ability of this 4 C. You must be a critical thinker, you must be creative, you must communicate effectively,
and you must able to work collaboratively. अगर हम आज के विश्व पे नजर करें, दृष्टिपात करें, तो हमें इस बात में तथ्य मिलेगा। अगर हमें इस परिस्थिति में सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें समस्याओं से समाधान तक पहुंचना होगा। अभी हम देख सकते हैं अफगानिस्तान की परिस्थिति के आधार पे पूरे विश्व के लिए एक समस्या, एक चुनौती खड़ी हुई है। उससे हम कैसे समाधान तक पहुंचेंगे, ये सोच विचार करने की प्रक्रिया क्रिटिकल थिंकिंग के दायरे में हम ले सकते हैं। क्रिएटिविटी is a very crucial and important part in making life of person and also development of the nation. जिस देश में ज्यादा सृजनात्मक लोग होंगे, उस देश का विकास ज्यादा होगा। सभी लोग व्यक्तिगत तौर पे और समाज के तौर पे चाहेंगे कि वह क्रिएटिव हो, कम्युनिकेट कर सके और कोलैबोरेटिवली वर्क कर सके। ग्लोबलाइजेशन के इस समय में हम डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे इफेक्टिव वर्क कर सके, ये आवश्यक है। तो ये जो 21st सेंचुरी की स्किल बताई गई है, उसमें सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग आती है। अगर हम अपने छात्रों को विश्व के लिए, विश्व समाज के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें इस 21वीं सदी के कौशल्य को उन तक पहुंचाना होगा। इसलिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बातें करनी होगी, उन्हें बताना होगा, ऐसे बहुत सारे प्रयत्न करने होंगे जिससे वह क्रिटिकल थिंकर बन सके। दूसरी जो बात है कि क्यों हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करें, वो है नीड ऑफ द डे। प्रस्तुत समय में उसकी आवश्यकता है। जैसे इट हेल्प अस टू मेक गुड डिसीजन इन आवर लाइफ। वी हैव टू टेक so many decisions, and the way of our life, happiness of our life, all certain things are depend on how we take decision. So the critical thinking is helping us to make good decision, and good decision will make our life easier and happier. तो निजी तौर पे आलोचनात्मक विचार हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से, बेहतर तरह से जीने के लिए अच्छे निर्णय, सच्चे निर्णय लेने में मदद करता है। It helps us to understand the consequence of our action and solve problems. क्रिटिकल थिंकिंग के दौरान हम पृथक्करण करते हैं, तब हम हमारे द्वारा किए गए वर्तनों की श्रेणी को हम टटोलते हैं, समझते हैं और उसके आधार पे प्रश्न का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग हमें आज के जीवन में उपयोगी है। इट कैन लीड टू डेवलपिंग अवर जजमेंट
evaluation and problem solving ability. मैंने आगे भी बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स विचार है जिसमें बहुत सारे सब स्किल्स शामिल हैं। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो हम ये सारी सब स्किल्स भी प्राप्त करते हैं, उसकी क्षमता भी हमारे में बढ़ती है। जैसे अच्छा जजमेंट ले सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, समस्या का निराकरण कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें हम कर सकते हैं। इट कैन एनहेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। जब छात्र अपने शिक्षा के बारे में आलोचनात्मक विचार करेगा तब वह अपनी लर्निंग स्टाइल, क्यों वो पढ़ रहा है, क्या रस है, किस विषय में रुचि है, ये सारी बातें सोचेगा और किस तरह से पढ़ने से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा ये वह जान सकेगा, जिससे डेफिनेटली द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन विल बी इंक्रीज्ड। क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेजेस क्रिएटिविटी। आलोचनात्मक विचार से हम सृजनात्मक विचार तक पहुंच सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि सृजनात्मक विचार के पहले हम आलोचनात्मक विचार करते हैं। जब किसी समस्या का समाधान करना होता है और समस्या का सबसे सटीक समाधान चाहिए या फिर सबसे असरकारक समाधान चाहिए, तब हमें बहुत सारे विकल्पों को सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और इसी प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं सृजनात्मकता हम में आती है। यूजफुल टू इंप्रूव प्रेजेंटेशन एक्सपर्टाइज एंड लैंग्वेज। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं, उस पे कुछ अप्लाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और जब कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तब मन ही मन या फिर किसी और व्यक्ति के साथ हमें आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ती हैं और आर्ग्यूमेंट्स इस तरह करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो तर्क है, वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचे और वो हमारा तर्क समझ सके और हमारी बात पर विश्वास कर सके। तो इस सारी चीजों में हम भाषा पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करते हैं और अपने विचार को अच्छी तरह प्रेजेंट करने के लिए जो भी आवश्यक स्किल्स है उसमें हम एक्सपर्टाइज प्राप्त करने लगते हैं। तो आज के विश्व में चाहे आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, इफ यू हैव सम गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स then it will admire। सब लोग उसको पसंद करेंगे। तो थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग we improve our presentation expertise and language। It also helps in understanding the views and perspective of others as well as enhancing the ability to work in team। जब हम कंपैरिजन कर रहे थे नॉर्मल थिंकर वर्सेस क्रिटिकल थिंकर, हमने देखा था नॉर्मल थिंकर है वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता, जबकि क्रिटिकल थिंकर्स आर गुड लिसनर्स। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तब हम
दूसरों के विचार पे भी गौर करते हैं, दूसरों को विचार को भी एक रिस्पेक्ट देके उसके ऊपर भी विचार करते हैं, तो हमें बहुत सारे विचार प्राप्त होते हैं और वो एक साहजिक प्रक्रिया होती है। जब हम जुट में काम करते हैं, समूह में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तब भी हमें बहुत सारे व्यूज को देखना होता है, बहुत सारे व्यूज को सुनना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। We already discussed about collaborative work, collaboration in as a 21st century skill. तो जब हमारे छात्र समाज में जाएंगे, किसी व्यवसाय में जाएंगे, तब उन्हें टीम में काम करना होगा, तब ये स्किल और स्किल्स के आधार पे जो दूसरों के विचार जानने समझने की एक आदत उनमें डेवलप हुई है, वो काम करेगी और वो अच्छी तरह से टीम में काम कर सकेंगे। इट इज डोमेन जनरल थिंकिंग स्किल। इट मीन्स दिस स्किल इज very essential to irrespective of your occupation. आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय से जुड़े हो, पर ये बेसिक स्किल है जो आप में होनी चाहिए। तो ये जान सकते हैं कि आज के जीवन में आलोचनात्मक विचार का महत्व क्या है। One can need this skill to self-reflect and justify our ways of life and opinions. जब हम अपने आप पे आलोचनात्मक विचार करना शुरू करेंगे, तभी तो हम अपने जीवन के बारे में सबको जस्टिफिकेशन दे सकेंगे। और जब हम अपने जीवन को जस्टिफाई कर सकेंगे, तब हम एक आनंद की अनुभूति करेंगे। उसके लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग आवश्यक है। की फॉर कैरियर सक्सेस। आज के समय में कॉरपोरेट जगत में अगर हम कैरियर ओरिएंटेड होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल कैरियर प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग की आदत वहां तक हमें ले जा सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग इज द की ऑफ कैरियर सक्सेस, ऐसा हम कह सकते हैं। एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एंड साइंस। डेमोक्रेसी तभी असरकारक इफेक्टिव होगी जब लोग, वोटर्स, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव या अपने सरपंच के पद पर जो नियुक्त होना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। कौन सा उम्मीदवार अच्छा है, कौन सा उम्मीदवार अच्छा काम करेगा, कौन सा उम्मीदवार किस हेतु से वो पद पर बैठना चाहता है, सभी चीजें का अगर हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार करें, तो हम सबसे अच्छे उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे। सो फॉर द डेमोक्रेसी वी कैन से
critical thinking process is useful. Same way, science is a process of thinking systematically. Invention is also science. इन सभी चीजों में क्रिटिकल थिंकिंग एक आवश्यक क्षमता मानी गई है. टू इंप्रूव रिलेशनशिप, हाउ क्रिटिकल थिंकिंग इज इन्फ्लुएंस आवर रिलेशनशिप. एक्चुअली critical thinking is useful to make good decision. When you make good decision, when you open-minded to listen others' view, then your relationship with others will definitely improve. So certain things we have discussed so far in need of the day for the critical thinking. Now we move on about how. Is teachable? क्या critical thinking की शिक्षा की जा सकती है? तो उसके ऊपर विचार करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं, most important element of critical thinking such as logic have been taught over 2000 years. यानी कि आलोचनात्मक विचार का जो महत्वपूर्ण घटक है तर्क, उसे तो हम लगभग 2000 सालों से सीखते सिखाते आ रहे हैं. अब तो कई कक्षा में एक विषय के तौर पर भी तर्कशास्त्र का चयन होता है. तो जो कोर एलिमेंट है क्रिटिकल थिंकिंग का, उससे हम इतना परिचित है, उसको हम इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग भी हम सिखा सकते हैं. It is scientific way of thinking. दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है. और जब साइंटिफिक प्रोसेस हम बोलते हैं, तब उसके निश्चित स्टेप्स होते हैं, और जिसके निश्चित रूप में सोपान होते हैं, उसको हम सिखा सकते हैं. क्रमशः वो सोपान, वो स्टेप्स सिखा के हम उसका अध्यापन कर सकते हैं. तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की शिक्षा हो सकती है. सम स्टेप टू फॉलो टू बी क्रिटिकल थिंकर, जो हमने आगे बात कही वही, अगर हमें क्रिटिकल थिंकर बनना है, देन वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. तो वो स्टेप्स क्या है, उसकी शिक्षा हो सकती है. वो स्टेप्स आपको कैसे फॉलो करना है, उसकी शिक्षा हो सकती है. बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी टॉट. उसकी शिक्षा हो सकती है, वो टीचेबल है. नाउ इफ क्रिटिकल थिंकिंग इज टीचेबल, देन व्हाट इज द राइट टाइम टू टीच. यानी कि हमारे जीवन के किस आयाम पर हमें क्रिटिकल थिंकिंग की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या क्रिटिकल थिंकिंग की शिक्षा देनी चाहिए. इस विषय में फ्रांसिस जेनसन ने, जो कि पेनिनसुला यूनिवर्सिटी में
न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर है, उन्होंने जो भी रिसर्च किए हैं उनके आधार पे उसको जो भी फाइंडिंग्स मिले हैं उसके आधार पे उन्होंने कुछ इस विषय में बताया है। According to them, adolescence is a period of a rapid growth in the part of the brain that control reasoning. उन्होंने जो भी न्यूरोसाइंस के आधार पे न्यूरोलॉजिकल जो रिसर्च उन्होंने किए, बहुत सारे रिसर्च उन्होंने इमेजिंग लेके किए, इमेजेस ली, उसके आधार पे उन्होंने यह बताया कि जैसे शिशु अवस्था में शारीरिक विकास खूब तेजी से होता है, उसी तीव्रता से मानसिक विकास एडोलेसेंस में यानी कि युवा तरुणावस्था में होता है। और तरुणावस्था में जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वह उस कॉर्टेक्स का होता है जिससे हम रीजनिंग कर सकते हैं। आपने कहीं देखा होगा, जो भी तरुण अवस्था में हैं वो आर्ग्यू कर सकते हैं, वो डिबेट कर सकते हैं। उसके पीछे वो यही वजह है कि अब उसका मस्तिष्क, उसका ब्रेन वो अच्छी तरह से डेवलप होने लगा है। साथ में वो यह भी बताते हैं कि ग्रोथ इन सिनेप्टिक कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स that define brain complexity and govern level of mental ability. उनका कहना है कि ना कि केवल ब्रेन डेवलप होता है, परंतु ब्रेन के साथ साथ ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की जो कनेक्शंस है वो कनेक्शंस भी बढ़ते हैं और उससे व्यक्ति में एक संकुल प्रकार के विचार करने की क्षमताएं पैदा होती है, कि मानसिक क्षमताएं विकसित होती है। दिस कनेक्शन सपोर्ट्स रीजनिंग। उनका कहना यह भी है कि ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ जो कनेक्शन भी डेवलप होते हैं वो कनेक्शन भी तर्क करने में, रीजनिंग करने में सहायभूत होते हैं। तो यहां सम टेक्निक्स बताई गई है। उसमें सबसे पहले है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। इफ यू यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन in your classroom, your student must have to think critically. They have to give evidence to their argues or to their answers. So open-ended questions are useful to fostering critical thinking in our students. Encourage decision making. Try to put your students to make decision, and when they make a good decision, appreciate it. Encourage them to take their decision own. When they involve in decision making, automatically they think critically. Provide opportunity to work in a group. Give some group work, project work, assignments which they have to complete in collaborative manner. While they are working in team or in a group, they have to listen each other's view. They have to respect others' argument, and by it they practice
the critical thinking process. Incorporate different points of view. When you are teaching a concept, try to incorporate different point of view. एक बहुत सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं. हम सबने शायद 3 इडियट मूवी देखी होगी. सराहनीय पिक्चर बनाई है, पर अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें तो हमें विचार करने पर मजबूर हम विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं. जैसे कि उस चित्रपट में सिर्फ यही दिखाया कि जिसको जो पसंद है वो काम उसको करने देने से वो सफल हो जाता है. पर क्या यही सही है? हर जगह यह होता है? नहीं. जिसको जो काम पसंद है और वह अथाग परिश्रम से वह करता है, तभी वह सफल होता है. पर परिश्रम की बात चित्रपट में बताई गई नहीं है. तो ये दूसरा पहलू हुआ. तो जब हम किसी बात को अपने स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं, we try to incorporate different points of view. By this, we fostering critical thinking process in our student. Connect different ideas. When you are teaching some ideas, or when you are assign them work, give such work that they have to connect different ideas to complete this work. Inspire creativity. Always inspire and motivate students who are creative. आगे हमने देखा है कि कैसे क्रिएटिविटी में क्रिटिकल थिंकिंग समाविष्ट है. तो जब कोई क्रिएटिव होता है या फिर क्रिएटिविटी दिखाता है, always admire them, always give some motivation, and last but not the least, brainstorming. Brainstorming is a technique given by Alex Osborne to create new ideas, to create new solution of the problem. So these are some techniques by which we can foster critical thinking in our students.